Good morning students, myself Manakshi, your biology teacher. Welcome you students to the 10th class. Okay, we know the current situation, so we are get connected with the online sessions. So hope you enjoy my lectures, and any doubt you can contact me. Okay, shall we start our new chapter, that is our environment. Okay, you have heard this environment topic in your 9th standard also when you have read about the natural resources, that is chapter 14, remember? Okay, let me explain you again. Our environment जहाँ पे हम रहते हैं, उस environment में जहाँ हम काम करते हैं, हम रहते हैं, right? For example, classroom जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे बेंच भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, चौक भी है, डस्टर भी है, आप भी बैठे हैं, मैं भी हूँ. So all these things together makes an environment. So environment we can say our surrounding. Am I right? Yes. Environment is the surrounding in which a person, an animal or a plant live. So we have heard the word environment often being used on the television, in the newspaper, by the people around us, our elders, right? So environment, for example, मैं study purpose के लिए अगर मंसूरी जाती हूँ और मैं वहाँ से वापस आती हूँ, my parents used to ask me what kind of environment was there. So I used to reply, yeah, it was fantastic, it was nice, right? So environment ऐसा word जहाँ हम रह रहे हैं, right? So our elders used to tell that environment is now not what it used to be earlier. So आज का जो वातावरण है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे 1960s 1970s के साथ, you will find some kind of difference, right? Like पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, पॉपुलेशन अब ज़्यादा है. सो पहले पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन अब ज़्यादा है. सो यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट. अदर से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. ऑब्वियसली जहाँ हम काम कर रहे हैं वो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होनी चाहिए. ये नहीं कि रोज़ वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस स्कूल में, संस्कार वैली जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स आपसे अगर प्रॉपरली बात कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट आपकी सुन रही है, दैट इज़ योर हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट? लेकिन अगर वहाँ पे टीचर्स आपस में क्लैश कर रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट आपकी नहीं सुन रही है, या फिर मैनेजमेंट आपको कुछ काम के लिए कह रही है, आप नहीं सुन रहे हैं, दैट इज़ नॉट एन हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट? So global summit also involving the developed and developing countries are regularly held to discuss the environmental issues. So obviously समितियाँ बनाई गई हैं globally. So जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आजकल के जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए ताकि एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस इतने ड्रास्टिक ना आए. सो इन दिस चैप्टर we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. So in this chapter we're going to study about the various kinds of environment, what are different kind of waste, or what are different kinds of environmental issues, organism interaction. Okay, in class 9th we saw how different materials are cycled in the environment in a separate biochemical cycles. Yes, just now I discussed with you in class 9th you have read chapter 14, that is natural resources. So you have seen various cycles over there like nitrogen cycle, sulfur cycle, oxygen cycle, carbon dioxide cycle, कि किस तरह से ये जो chemicals हैं ये used up होते हैं और दोबारा से regenerate होते हैं, और इनको हम बोलते हैं biogeochemical cycles, right? In these cycles essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, water are changed from one form to the other, which you have already read in your previous classes. So we shall now see how human activity affect these cycles. ठीक है, अब ह्यूमन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का एक अहम हिस्सा है, बिकॉज ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं. अगर आप देखें कि डे टू डे लाइफ में कितना वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़ वी आर फेसिंग लाइक पोल्यूशन, राइट? सो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर. ओके, चलो एक एक्टिविटी मैं देती हूँ आपको. सपोज़ आपके घर में 2 दिन में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, इट में बी प्लास्टिक, इट में बी किचन वेस्ट, और इट में बी जो चाय आप बनाते हो, जो चाय पत्ती जनरेट हो रही है वेस्ट में आप डाल रहे हो, एनीथिंग, एनी पेपर, मेडिसिन बॉटल, एनी ग्लास, ब्रोकन फुटवेयर, वो सब आप एक जगह इकट्ठा करके, ठीक है, एक गड्ढा खोद सकते हो.
या फिर बकेट के अंदर ही ले सकते हो। बकेट के अंदर ये सारा मटेरियल डालने के बाद उसको आपको मिट्टी से कवर अप करना है। सो एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर तक आप उसे कवर कर दीजिए। उसके बाद उसको हल्का सा जो है जो मॉइस्चर आप देते रहें, ज़्यादा नहीं कि उसमें पानी ज़्यादा डालें, आप हल्का सा मॉइस्चर उसको आप प्रोवाइड करते रहिए। एंड आफ्टर 15 days इंटरवल you observe it properly. So what are the materials that remain unchanged over the long period of time? कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनमें बहुत कुछ चेंजेस आए होंगी, उनकी फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हुई होंगी. सो मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? सो दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर टुडे एंड लेट मी नो इन द फ्यूचर क्लासेस, राइट? ओके, सो वी नो दैट हमारे घरों में डे टू डे जो वेस्ट जनरेट होता है, ऑब्वियसली उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक कुछ वेस्ट होंगे बायोडिग्रेडेबल, कुछ होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. रिमेंबर यू ऑलरेडी डेल्ट ऑल दिस टॉपिक इन योर प्रीवियस क्लासेस कि कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो हमें ग्रीन बकेट में डालने चाहिए, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो हमें ब्लू बिन में डालने चाहिए, isn't it? So we have seen in this chapter on the life process that food we eat is digested by various enzymes in our body. Okay. जब क्लासेस शुरू हुई थी तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था न्यूट्रिशन के बारे में. और न्यूट्रिशन में हमने प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में किस तरह से होता है लाइक अमीबा, एंड वी ऑल्सो सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड गेट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी. सो हैव यू एवर वंडर्ड वाई सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? हमने देखा था कि माउथ में जब स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा था तो एमाइलेज एक्ट कर रहा था. स्टमक में जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा था वहाँ पेप्सिन एक्ट कर रहा था. इंटेस्टाइन में जहाँ पे हमारा फैट डाइजेस्ट हो रहा था वहाँ लाइपेज एक्ट कर रहा था. तो एक ही एंजाइम इन सभी चीज़ों को क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस. प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम, स्टार्च के लिए अलग एंजाइम, फैट के लिए अलग एंजाइम. सो दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट. दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल, राइट? अगर आप कोल खा लेते हो, आपकी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके और आपको एनर्जी दे सके. सो बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द action of bacterial enzymes or any other saprophytes. So what are saprophytes? We already discussed in life process chapter. Saprophytes are the organism which break down or which feed on dead and decaying matter. For example fungi. So बैक्टीरिया के पास या फंजाई के पास ये डिकम्पोजर्स हैं, इनके पास वो एंजाइम्स नहीं हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकें, राइट? सो दीज मटीरियल्स विल नॉट बी एक्टेड अपॉन बाय द फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट, प्रेशर, बट under the ambient condition found in the environment they persist for the long time. So these plastics, glasses cannot be broken down by these decomposers enzymes. They persist in the nature for the long time. So substances जो biological process से breakdown हो जाते हैं they considered to be biodegradable, and those who cannot be broken down by the microbial action or the enzymes are said to be non-biodegradable. Clear? Substances which are broken down by biological process are biodegradable and which are not considered to be non-biodegradable. Clear, students? So that's all for today's class. Hope you have cleared your doubts to this through this lecture. So meet you in the next lecture. Till then, goodbye. Stay safe. Stay at home.